my great grandfather was a noted vocalist, the Indian classical vocalist from Kolhapur. And this is, I'm talking about before independence. And that time, Pandit Vishnu Digambar Paluskar, the connoisseur of Indian classical music, vocal from Kolhapur, asked my grandfather and other disciples to go to northern part of India and propagate Indian classical music in good families, as it was not considered as reputed and respectful in those times. So my grandfather went to Allahabad and started teaching music to people like Jawaharlal Nehruji's sisters, and in Nehruji's marriage also. महाराष्ट्र में जैसे मंगलाष्टक होती है वैसे कश्मीरी ब्राह्मण्स में भी मंगलाष्टक टाइप एक गाया जाता है. It was composed and written by my grandfather. He was taken to Delhi for the wedding in the special train, and then he taught many celebrities in those times. And then my father, though he was an officer in an AG office, Allahabad, but he also taught postgraduate classes of Indian classical music, vocal in Prayag Sangeet Samiti. So I come from a very musical background, and my mother and my parents, both my parents, were very encouraging that we as children must inculcate the cultural heritage of our country, that is classical music and theatre as well. So I am really very lucky to be born in that family. So it's all courtesy my parents that I'm sitting in front of such great ladies and my dear friend Sangamitra Roy, who always appreciated whatever I did. Heard by me, Mrs. Bose as well, Ratna Bose, and Shobna Day also, to be very true. But then when we took the team to Delhi, it was very challenging because very less children, very less time, and that time Sangamitra used to say, "Ma'am, kuch bhi ho, we will do it." And I really hats off to her guts and support by Ratna, Shobna, and another, our principal, Mrs. Benita Punekar, who had total faith in us as team. And we went, and by God's grace, it was appreciated by all because it was written in Hindi, and Sangamitra had choreographed it beautifully. And till date, it is one of my very favorite creation. Let me tell you, Sangamitra, it's very close to my heart. And we have done action replay of that dance drama Girl Child many at many places, and it still is very close to me because it still touches our heart, and that's the need of the hour also right now. Also, we are living in such a society. Anyways, we will get back to some things once the balls start rolling. Yes, yes, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening, everyone. शामों शहर खुशियों का तराना रहे, शामों शहर खुशियों का तराना रहे, कुछ भी हो मुस्कुराने का बहाना रहे। मैं मिसेस मनीषा देवड़ा आज के वेबिनार में आप सभी का स्वागत करती हूँ और कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैम से अनुमति चाहती हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सुरीले गीत के साथ मैं बुलाना चाहूंगी मिसेस सागरिका को।
क्या पाया, हमने क्या खोया, हमने क्या पाया। जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। हम से गुनगुना नहीं सकते, हम से गुनगुना नहीं सकते। वक्त ने सा गीत क्यों गाया, वक्त ने सा गीत क्यों गाया। जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। दिल को सुकून मिलता है मुस्कुराने से, दिल को सुकून मिलता है मुस्कुराने से, महफिल में रौनक आती है सागरिका के गाने से। थैंक यू सागरिका। गुड आफ्टरनून मैम। थैंक यू मैम। Very, very well sung, Sagarika. Excellent. थैंक यू मैम। यस मैम। अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव कहती है भारत की धरा, स्वागत करके आपका निभा रहे हैं परंपरा। अब मैं स्वागत करती हूँ हमारे आज के मेहमान मंजू पेंडारकर मैम का। आपका जन्म एक सांस्कृतिक रूप से समृद्ध परिवार में हुआ। शुरुआत में आकाशवाणी में बाल कलाकार के रूप में तथा बाद में एक पूर्ण उद्घोषक बन गई। एक आर्मी ऑफिसर से शादी होने के बावजूद भी उन्होंने अपना आकाशवाणी प्रयास जारी रखा। उन्हें 29 वर्ष तक एक शिक्षक होने का एक विशाल अनुभव है और उन्होंने एकेडमी के साथ साथ सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। वह एक वाइस ट्रेनर रही हैं और स्कूलों और कॉलेजों, विभिन्न पेशेवर संस्थानों के लिए वॉइस कल्चर वर्कशॉप चलाती रही हैं। उन्हें अपने श्रेय पुणे के नामी कॉलेज जैसे सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, भारती विद्यापीठ, सिंघड़ इंस्टीट्यूट, बारामती कॉलेज, MIT, लोनी और गारवेर कॉलेज जैसे कई सफल मॉड्यूल्स में हैं। उन्हें मल्टीटास्कर टीचर के रूप में विभिन्न पुरस्कार मिले हैं। स्क्रिप्ट राइटिंग, वॉइस ओवर कंसेप्ट डेवलपमेंट और इसे अंजाम देना उनकी आदतों में शामिल है। उन्हें कैम्ब्रिज इंस्टीट्यूट हैदराबाद, वर्धा इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, न्यूज़पेपर और मैगजीन्स के लिए कई लेखों का अनुवाद किया। वह वर्तमान में पुणे में स्थित हैं
और अपने रचनात्मक उद्यम को जारी रखना चाहती हैं। वेलकम मैम, आज के वेबिनार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डेंटल कोर के आला कमान की सारी महिलाएं, मेरी बहुत ही कलेजे के नजदीक जो दोस्त है संघमित्रा रॉय, और जितनी लेडीज आज ऑनलाइन हैं इस वेबिनार में उपस्थित, उन सभी को मैं सादर नमस्कार और धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप सब ने मुझे उस काबिल समझा कि मैं कुछ अपने अनुभव आप सबके साथ साझा कर सकूं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये निवेदन आपसे करूंगी कि इस पूरे वेबिनार में हम इसको इंटरैक्टिव रखेंगे, यानी एक तरफा संवाद न हो। संवाद वो होता है जो मैंने कुछ बोला, आपने सुना, आपने कुछ अपनी बात कही जो मुझ तक पहुंची। तो ये संवाद जो है एक तरफा न होकर, मैं उम्मीद करती हूं कि ये दो तरफा होगा। आज का विषय मुझे मिसेस रॉय ने दिया है, वाणी वर्कशॉप लेना है, स्पीकिंग स्किल्स के ऊपर बात करनी है। यूं देखा जाए तो दोस्तों, हम महिलाएं पैदाइशी ही स्पीकिंग स्किल से नवाजी जाती हैं भगवान द्वारा। आप लोगों के जहन में ये बात आएगी कि ऐसी कौन सी नई बात मंजू मैम बताने वाली हैं जो हमें नहीं मालूम, क्योंकि हम सबको स्पीकिंग स्किल्स तो बहुत बखूबी आते हैं। पर यही हमारी गलती होती है दोस्तों, क्योंकि हमें लगता है जितना हम जानते हैं उतना पर्याप्त है। पर आज की रोजमर्रा की जिंदगी में वो अतिशय, जिसको कहते हैं अनिवार्य तौर पे ये जानना जरूरी है कि हमें अपनी वाक्पटुता, अपने बोलने की क्षमता को किस तरह से तराशा जाए कि वो हमारी जिंदगी के हर पहलुओं में हमें एक जिसे कहते हैं सहारा दे सके और एक प्लेटफॉर्म दे सके अपनी पर्सनालिटी को निखारने का। दोस्तों, हमें भगवान ने 5 ज्ञानेंद्रियों से यानी सेंस ऑर्गन से भी नवाजा है। आंखें जिससे हम देखते हैं, कान जिससे हम सुनते हैं, जीभ जिसकी मदद से हम बोलते हैं, त्वचा जिससे हम कुछ चीज महसूस करते हैं, और नाक जो हमें अलग अलग सुगंधित और महक को सूंघने के काम आती है। इन सब में ये मेरा व्यक्तिगत मानना है, एक छठी चीज हमसे छूट गई, जो है हमारे वोकल कॉर्ड्स, जो हमारे शरीर में यहां से यहां तक अंदर की ओर स्थापित है। और हम इन वोकल कॉर्ड्स की मदद से अपनी स्पीकिंग स्किल्स यानी बोलने की क्षमता को किस तरह से निखार सकते हैं, आइए आज इस पे कुछ बात की जाए। मैं हमेशा अपने वेबिनार्स में, अपने लेक्चर्स में एक ऐसे अभिनेता का मेंशन करती हूँ जो एक उत्कृष्ट कलाकार, उत्कृष्ट डांस आर्टिस्ट भी है, और जिसका बचपन बहुत ट्रॉमेटिक बीता क्योंकि वो स्टैमर करता था, हकलाता था। मैं चाहती हूँ कि आप ऑडियंस उसका नाम सोचें और मुझे बताएं गेस करके। मैं कुछ उसके बारे में क्लूज देती हूँ। कहो ना प्यार है, क्रिश और जोधा अकबर जैसे बहुत सफल फिल्मों के बिल्कुल सही कहा, ऋतिक रोशन। आप लोगों को मालूम होगा या जानकर हैरानी होगी कि ऋतिक रोशन जब पैदा हुए तो उस समय उनके पेरेंट्स का ध्यान इस ओर नहीं गया। जैसे जैसे वो बड़े होते गए, बहुत जब छोटे थे तो चूंकि बच्चे हकलाते हैं, थोड़ा सा तोतली भाषा में बोलते हैं, तो वो बहुत कानों को कर्णप्रिय लगती है। तो ऋतिक रोशन के माँ बाप को लगा कि ये तुतला रहा है, तो ये छोटा है, वो बड़ा कान को अच्छा लग रहा है। पर एक उम्र होने के बाद जब यही ऋतिक रोशन स्कूल जाने से कतराने लगे, अपने दोस्तों में, हम उम्र दोस्तों के साथ पार्क में, उनकी बर्थडे पार्टीज में मिलना जुलना उनको रास नहीं आता था, क्योंकि बाकी बच्चे उनके इस तुतलानेपन को लेकर, उनके बोलने की क्षमता जो कमजोर कड़ी थी उनके जीवन की, उसके बारे में टीका टिप्पणी करने लगे और उनका मजाक उड़ाने लगे। इस वजह से एक न्यूनगंड यानी इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स ऋतिक रोशन में डेवलप होने लगा।
उनकी माँ को जब इस बात का एहसास हुआ तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया होगा? सोचिए क्या किया होगा पिंकी रोशन ने, बताइए। सबसे पहले पिंकी रोशन ने एक स्पीच थेरेपिस्ट के पास उनके पास ले जाने का निर्णय लिया और स्पीच थेरेपिस्ट ने बोला आपके बच्चे में एक छोटी सी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है जो कि एक छोटी सी जीभ की सर्जरी से ठीक हो जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको कुछ और भी प्रयास करने होंगे। और वहां आई स्पीकिंग स्किल्स की बात। और स्पीच थेरेपिस्ट ने, जैसे हम लोग रोज सुबह उठते हैं दंत मंजन यानी टूथब्रश टूथपेस्ट का इस्तेमाल क्यों करते हैं? जिससे कि बैड ब्रेथ, जो रात भर हमारा मुंह बंद था और हमारे मुंह के अंदर जो सलाइवा तैयार हुआ और जो कसैलापन तैयार हुआ, टूथब्रश और टूथपेस्ट के बहाने वो मुंह एकदम रिफ्रेश हो जाता है। कुल्ला करके हम सारी कड़वाहट उसको उगल देते हैं। स्पीच थेरेपिस्ट ने ऋतिक रोशन को टंग ट्विस्टर्स दिए। टंग ट्विस्टर्स क्या होते हैं? छोटी छोटी कविताएं जिनको सुनने में हमें लगता है कि बहुत सिमिलर साउंडिंग, यानी उन शब्दों की ध्वनियां बहुत आसपास होती हैं पर उनका अर्थ बिल्कुल अलग होता है। और ऋतिक रोशन आज भी अपनी स्पीच थेरेपिस्ट के बताई हुई ये स्पीकिंग स्किल के ट्रिक्स को आज भी दोहराते हैं जब भी फुर्सत में रहते हैं। शूटिंग के लिए जा रहे हैं, गाड़ी में बैठे हैं, वैनिटी वैन में मेकअप हो रहा है, वो खुद बोलते हैं अपने इंटरव्यूज में, आप अगर मेरी बात पे यकीन ना हो तो इंटरनेट पे चेक करिएगा, वे बोलते हैं स्पीच थेरेपिस्ट के बताई ये टंग ट्विस्टर्स आज भी मुझे मेरी स्पीच को, मेरे बोलने की ताकत को उभारने में काम आए। तो बहनों, स्पीकिंग स्किल्स को कभी भी लाइटली न लीजिए। अब आपके मन में दूसरा विचार आएगा कि हम हाउसवाइफ्स हैं या हम अपने अपने क्षेत्र में सफलता हासिल करके बैठे हुए हैं, हमें अब स्पीकिंग स्किल्स सीखने की और उनको परिमार्जित करने की आवश्यकता भला क्यों पड़ी है? मेरा मानना है हमें अपने बच्चों को, ये जो कहते हैं ना हम अपने संस्कार बच्चों को पास ऑन करते हैं, ये जो छोटे छोटे स्किल्स हैं, ये जो कौशल है, ये जो छोटे छोटे सॉफ्ट स्किल्स हैं, ये हम घर से अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। क्योंकि आज वो जमाना आ गया है जब इंटरव्यूज में हमें आंका जाता है, ग्रुप डिस्कशन की बात आती है, हम इंजीनियर डॉक्टर बच्चों को बना देते हैं, हम उनके ट्यूशन पे, उनकी पढ़ाई पे, उनके पहनावे पे बेहिसाब खर्च करते हैं, पर क्या हम कभी कोशिश करते हैं कि उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में ये स्पीकिंग स्किल्स कितने इंपॉर्टेंट हैं? हमें लगता है ब्रांडेड कपड़े पहना दिए, अच्छे जूते पहना दिए, सूट बूट पहना के हमने राजा बाबा बनाकर अपने बच्चे को भेज दिया, ये तो इंटरव्यू क्रैक करके ही आएगा। यही हमारी भूल होती है, हम उनमें ये चीजें इनकलकेट करना भूल जाते हैं कि ग्रुप डिस्कशन भी बेटा तुमको आजमाना है, तुम्हें वहां बैठे पैनल के सामने, अननोन लोगों के सामने अपनी बात कहनी है। बात कहने का एक लहजा होता है, एक ढंग होता है, और उसमें पावर ड्रेसिंग भी आती है, उसमें स्पीकिंग स्किल्स भी आती हैं, उसमें आपका जनरल नॉलेज भी आता है। तो बेनिफिट्स ऑफ स्पीकिंग स्किल्स कहाँ आए? हमारे रोजमर्रा के जीवन में रोज आते हैं। हमें कॉल सेंटर का जॉब करना है, हमें एचआर का जॉब करना है, हमें फ्रंट ऑफिस देखना है, हम एक टीचर हैं, आज तो ऑनलाइन का जमाना है, हम एक वक्ता हैं, वक्ता वक्ता रहे, वक्ता न बन जाए, इसके लिए हमें स्पीकिंग स्किल्स आनी चाहिए। हम महिलाओं को बोलना आता है, पर बोलने में क्या चीजें नहीं बोलनी है, कम शब्दों में अपनी बात कैसे जाहिर करनी है, वो हम भूल कर बैठते हैं। हमें लगता है हमारे पास शब्दों का अथाह समुद्र है, अथाह सागर है, शब्दों को पिरोकर हम वाक्य की रचना कर बैठते हैं, पर हम ये भूल जाते हैं कि उस वाक्य को कम से कम समय में कैसे बोला जाए। अगर आप मुझसे पूछेंगी तो मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी को एक बेहतरीन वक्ता के तौर पे नवाजा जाना चाहिए। वो नवाजे गए हैं, वो कवि तो थे ही,
एक बेहतरीन वक्ता भी थे। उनका एक छोटा सा प्रसंग आपको बताती हूँ कि बेनिफिट्स ऑफ स्पीकिंग स्किल्स कितने इंपॉर्टेंट है जानना आज के जीवन में। एक बार अटल बिहारी जी के पास कुछ लोग पहुंचे और जो समय वो शायद प्राइम मिनिस्टर रहे होंगे, उनको बोला गया कि हम आपको अपने कॉलेज में बुलाना चाहते हैं एक वक्ता के तौर पे। अटल बिहारी जी ने बोला, अगर आप मुझे आधा घंटा समय दे रहे हैं पोडियम पर बच्चों से वार्तालाप करने का, तो मुझे एक हफ्ते का समय दीजिएगा और बता दीजिएगा किस तारीख को आके बोलना है, मैं जरूर आऊंगा। अगर आप मुझे 15 मिनट का समय देते हैं तो मुझे 20 दिन का समय दीजिएगा, और अगर आप मुझे सिर्फ 5 मिनट का समय देते हैं तो मुझे कम से कम 25 दिन का समय दीजिएगा, तो मैं जस्टिस कर पाऊंगा अपनी 5 मिनट की स्पीच के लिए। मैं सवाल पूछती हूँ बहनों, वाजपेयी जी को 5 मिनट के लिए 25 दिन की जरूरत क्यों पड़ी और 30 मिनट के लिए 10 दिन की जरूरत क्यों पड़ी? बताइए, सोचिए। आई वॉन्ट द आंसर्स फ्रॉम द लेडीज, कम ऑन। मैम, बोलिए। वो कम समय में मतलब कुछ ऐसी बातें बच्चों के साथ में वो शेयर करे कि बच्चों पर बहुत अच्छा और ज्यादा असर हो। वेरी गुड, वेरी नाइस, एग्जैक्टली। एनी अदर लेडी, कोई और बहन कुछ कहना चाहेंगी? कम ऑन लेडीज, आई वांट टू सी योर फेसेस आल्सो। अभी इन्होंने जो बोला वो बिल्कुल, हाँ, शायद कोई कुछ कहना चाहता है। यस मैम, एक्चुअली Yes, वो आधा घंटा में जितना बात बता सकते हैं वो उसी बात को 5 मिनट में बताना चाहते हैं, तो उसके लिए उनको ज्यादा प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। बिल्कुल सही। आई एम सो हैप्पी यू पीपल गॉट इट इन 2 minutes. Such an intelligent lot sitting right in front of me. Ladies, वाजपेयी जी जैसा इंटेलिजेंट वक्ता 5 मिनट की बात के लिए 25 दिन की तैयारी करना चाहता है। सोचिए इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीकिंग स्किल्स, कि उसे 5 मिनट में बहुत बड़ी बात बच्चों तक पहुंचानी है और वे 5 मिनट में से एक भी मिनट वाया नहीं जाने देना चाहते। ये ताकत है स्पीकिंग स्किल्स की, ये ताकत है शब्दों के कमाल की। तो चलिए हम कुछ बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ स्पीकिंग स्किल्स की। हम लेडीज अपने बच्चों को ये बातें जरूर बताना मैं चाहूंगी कि आप ये सब बातें अपने बच्चों से साझा करें। बहनों, मैं 2 बेटियों की माँ हूँ और मैंने कोशिश करी है कि मैं अपनी दोनों बेटियों को, मालविका और दामिनी को, इस बारे में अवगत जरूर कराऊं। और मुझे बहुत फक्र होता है जब दोनों बेटियां अपने इंटरव्यूज में, इंटरव्यू स्किल्स में उनको मैक्सिमम मार्क्स मिलते हैं। ग्रुप डिस्कशन में उन्हें कॉन्फिडेंस रहता है कि हम इस टॉपिक को इस तरह से टैकल कर पाएंगे। बचपन से अपने बच्चों को वाद विवाद प्रतियोगिता में, एलोक्यूशन कंपटीशन में, स्कूल की असेंबली में पार्टिसिपेट करने के लिए इनकरेज कीजिए। लैंग्वेज नो बार, प्रांतीय भाषाएं जरूर बोलिए घर में, हिंदी जरूर आनी चाहिए, पर यूनिवर्सल लैंग्वेज अंग्रेजी को दरकिनार न करें। और इसलिए हर भाषा में, जैसे हर भाषा की अपनी फेंक है, फेंक माने एक रीच होती है, तो हर भाषा का अपना अहम महत्व है। भाषा को कभी आंकिए नहीं नीचा, हर भाषा समान है, हर भाषा महत्वपूर्ण है। और इसीलिए अपने बच्चों को जहां भी, चाहे गली मोहल्ले में गणपति उत्सव हो, दुर्गा पूजा हो, वसंत उत्सव हो, 15 अगस्त का प्रोग्राम हो, 26 जनवरी का प्रोग्राम हो, यूनिट्स में इतने प्रोग्राम्स होते हैं आर्मी के। मैं खुद एक सैन्य अधिकारी की पत्नी रही हूँ। वेलफेयर एक्टिविटीज होती हैं, जहां भी मौका मिले आप लोग न चूकिए उसको हथियाने का, हासिल करने का और उसमें कामयाबी पाने का, और अपने बच्चों को सिखाइए, क्योंकि ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट का पहला पायदान है। माँ सबसे इम्पोर्टेंट शिक्षिका है, क्योंकि वो घर से सिखाती है ये सारे कौशल। किताब में सॉफ्ट स्किल्स और लाइफ स्किल्स सीखने की जगह घर में सिखाइए। मैं कुछ आपको उदाहरण देती हूँ, मैं क्यों चाहती हूँ कि आप अपने बच्चों को स्पीकिंग स्किल्स सिखाइए। मैं वॉइस कल्चर के वर्कशॉप्स कंडक्ट करती हूँ मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, सिम्बॉयसिस के, मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स।
उन सबों के पास बुद्धि बहुत है। आज हर कोई बुद्धिमान है बहनों। आज इंटरनेट घर पे है, एक चीज क्लिक करो, गूगल से दुनिया की चीजें आपके सामने पेश हो जाती हैं। लेकिन हम उनको पेश कैसे करते हैं जब मौका आता है? पोडियम पे खड़े होके 5 मिनट की स्पीच करना आसान बात नहीं है, इस बात से हम सब अवगत हैं। पर इस चीज को ओवरकम करके उसमें महारत हासिल कैसे की जाए? मैं एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। मैडम, मैं आप दोनों को एक एक इंटरव्यू में एक ही प्रश्न 3 बच्चों से, जिसका एक्ट करके मैं दिखाती हूँ क्या प्रॉब्लम आती है बच्चों के साथ। मैं चाहती हूँ एक ही महिला मुझसे 3 बार गिव योर इंट्रोडक्शन, व्हाट इज योर गोल, व्हाई यू वांट टू अचीव दिस जॉब। आप अपने बारे में बताइए, आप ये जॉब क्यों हासिल करना चाहती हैं और आपका जीवन में क्या लक्ष्य है। ये 3 सवाल पूछिए। बहनों, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण एक्ट करके दिखाना चाहती हूँ कि स्पीकिंग स्किल्स कितने जरूरी हैं। मैं ऐसे 3 बच्चों का उदाहरण दे रही हूँ जो बुद्धिमान हैं, उतने ही तीनों को उतने ही मार्क्स आए हैं उनके ग्रेजुएशन, फॉर एग्जाम्पल इंजीनियरिंग करके निकले हैं एंड दे आर अप्लाइंग फॉर अ जॉब इन अ रिनाउंड कंपनी लाइक इन्फोसिस फॉर एग्जाम्पल, और वे इंटरव्यू के लिए पहुंचते हैं। स्पीकिंग स्किल्स के आत्मविश्वास की एक में है कमी, स्पीकिंग स्किल्स का आत्मविश्वास एक में भयानक ज्यादा है, ओवर कॉन्फिडेंट है वो, और तीसरा बंदा जो है या बंदी वो बिल्कुल बैलेंस्ड है। ये तीनों चीज मैं आपको एक्ट करके दिखाती हूँ तो आपको महसूस होगा स्पीकिंग स्किल्स कितने जरूरी हैं। 1 मिनट का समय, और मैं चाहूंगी एक महिला मुझसे ये तीनों सवाल पूछे। आप ये अंदाज लगाइए, ये इंटरव्यू रूम है और यहाँ एक यंग लड़की 18 साल की या 20 साल की इंजीनियरिंग करके जॉब के इंटरव्यू के लिए आई है। कैंडिडेट नंबर 1, मे आई कम इन मैडम? Good. Oh, yes, madam. Madam, my name is Manju Pendharkar. I have just completed my engineering from a renowned college of Pune, College of Engineering, and I have taken mechanical as my branch. Ma'am, I always have been extremely talented and have been taking part in all the co-curricular activities, you know. And because of my talent, I always won first prize. And I'm sure you must have seen all that in my certificates. I come from a background where my father is an army officer, my mother is a teacher, and I'm here in front of you to catch the job, ma'am. Ma'am, I'm so good in my work and I think I'll be an asset to your institute. That's why I think I must get the job. Oh, ma'am, my goal is to reach where you are sitting. That's the vice president of a company called Infosys. This is candidate number 1, who is overconfident, equally capable, but see the body language and the vocabulary. Now, candidate number 2. May I come in? Yes. Can Thank you. I sit, ma'am? Yes, you can. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Okay. Introduce yourself, please. Ma'am, my name is Manju Pendharkar. I have done my engineering from a renowned institute of Pune College of Engineering, and I took mechanical. I topped the branch, ma'am, and I'm sitting here for the interview for the post of executive in Infosys company, ma'am. Thank you, ma'am. ओके। आप ये जॉब क्यों करना चाहती है? Ma'am,
दरअसल मैम ये मेरा सपना था मैम कि मैं इन्फोसिस जैसी कंपनी में नौकरी पाऊं और अपने माँ बाप का सपना पूरा करूं। मैंने हमेशा टॉप किया है मैम और मैं चाहती हूँ कि मुझे ये जॉब मिले मैम। ओके, तो आपके क्या गोल्स है? मैम मैम मैं चाहती हूँ कि मैं एक बहुत सफल अधिकारी बनूं और बस मैम थोड़ा सा मुझे डर लगता है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि मैं बहुत शिद्दत से नौकरी कर पाऊंगी अगर मुझे मौका मिले। धन्यवाद मैम। मैं निकलूं मैम, जाऊं मैम? ओके, ओके, थैंक यू। Now the last candidate. May I come in, sir? May I come in, ma'am? यस, आ जाइए प्लीज। Thank you. Thank you, ma'am. Good morning, ma'am. Okay, Good ma'am. morning, sir. तो आप अपने बारे में कुछ बताइए। मैम मेरा नाम मंजू पेंढारकर है। मैंने पूना के एक प्रतिष्ठित कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे से मैकेनिकल डिग्री हासिल की है और मैंने, आपको जान के हर्ष होगा, मैंने अपने ब्रांच में टॉप भी किया है। मैं हमेशा से को करिकुलर एक्टिविटीज में भाग लेती रही हूँ और अक्सर मुझे अव्वल दर्जे से नवाजा गया और मैंने हमेशा ही अपने कॉलेज का नाम रोशन किया। मैं चाहती हूँ आगे बढ़कर मैं इन्फोसिस जैसी आपकी कंपनी में भी नाम हासिल कर सकूं अगर मुझे मौका मिला तो। ओके, आपको क्यों लगता है कि आपको ये जॉब करनी है? और हमारे पास तो बहुत सारे एप्लीकेशंस आई है कि हम आपको क्यों ले लें, ऐसे देखिए क्यों ऐसा आपको है अपॉइंट करें? जी हाँ मैम, मैं एक अदनी सी छात्रा रही हूँ, लेकिन मेरी एम्बिशंस, मेरी महत्वाकांक्षाएं बहुत ऊपर है और मैं चाहती हूँ मैं अपने माँ बाप का सपना पूरा कर सकूं और ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य रहेगा अगर मेरे करियर की शुरुआत आपकी कंपनी से हो, इन्फोसिस, जो मेरा सपना है। और मैं अपने माँ बाप के हर्षित चेहरे को देखकर जितना मुझे सम्मान मिलेगा और संतोष मिलेगा मैम, आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकती। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मुझे ये जॉब मिले और यही मेरी महत्वाकांक्षा भी है। धन्यवाद मैम। That's all, ladies. Now coming to the point. मैंने कोई अपने अभिनय क्षमता दिखाने के लिए ये छोटा सा एक्ट नहीं किया। इन तीनों छात्राओं में सबसे पहली छात्रा के बारे में आप लोग क्या बोलना चाहेंगी? क्या कमी थी उसमें? तीनों टॉपर्स, तीनों बुद्धिमान, तीनों को करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने में हमेशा अग्रणी रही। क्या उसमें कमी थी? बताइए। कम ऑन। नंबर 1 कैंडिडेट, आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं लगा? यस, ओवर कॉन्फिडेंट, ओवर शैडो करना सबके सामने, और लक्ष्मण रेखा कहाँ आंकनी, कितना बोलना है। हम इंटरव्यू देने आए हैं, मजाक नहीं है। हम चौराहे पे अपने दोस्त गप्पे हाँकने नहीं खड़े हैं। हम पार्क में अपने फ्रेंड्स के साथ किसी चीज पे डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। ओवर कॉन्फिडेंस इज द बिगेस्ट एनिमी। हमें लगता है हम बहुत अच्छा बोल गए, हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसी भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे सर्टिफिकेट्स जो हैं वो हमारे लिए पूरक हैं, और यही हमारी गलती होती है। कैंडिडेट नंबर 2, उतनी ही बुद्धिमान, पढ़ी लिखी, ब्रांच में टॉपर, पर उसमें आत्मविश्वास की पूरी कमी, जो कि कभी किसी ने उसको इस बारे में आंखें खोली ही नहीं कि बेटा किताबी कीड़ा बनो नहीं। आज वो जमाना नहीं है कि सिर्फ किताबें पढ़ के तुम ब्रांच में टॉप कर लोगी और तुम्हें जॉब मिल जाएगा। आज हर कंपनी, हर स्कूल, हर इंस्टीट्यूशन मल्टीटास्कर पर्सनालिटी चाहता है। आज क्यों लोग इंजीनियरिंग के साथ एमबीए भी करते हैं? मेरी खुद की बेटी ने किया है, क्योंकि इंजीनियरिंग आपको टेक्निकल नॉलेज देता है और एमबीए देता है एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स। इन दोनों का कॉम्बिनेशन एक अच्छा एग्जीक्यूटिव बनाता है। इट्स अ वेरी गुड रेसिपी फॉर अ सक्सेसफुल करियर। तो दूसरा नंबर का जो कैंडिडेट था या थी, उसमें आत्मविश्वास की भारी कमी थी जब स्पीकिंग स्किल्स की बात आई। सर्टिफिकेट्स उसके उतने ही अव्वल थे,
और शायद लास्ट कैंडिडेट, अगर आपने महसूस किया होगा मेरी बॉडी लैंग्वेज से, वॉज अ वेरी बैलेंस्ड कैंडिडेट, क्योंकि उसको स्पीकिंग स्किल्स, बातचीत के माध्यम से, अपने कन्वर्सेशन के माध्यम से अपनी बात किस तरह से सामने वाले तक पहुंचानी, इसके बारे में पूरा ज्ञान था, क्योंकि शायद घर में उसको इस बारे में पढ़ाया गया, बताया गया हो, ज्ञान कराया गया हो, कोई छोटा शॉर्ट कोर्स कराया गया। लोग कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम। मैं अपने मुंह से नहीं कहना चाहती, पर अभी बस जहन में आया तो आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। मेरी मेट की डॉटर इंजीनियरिंग में अभी उसको एडमिशन मिला है, 17 साल की लड़की है, यंग गर्ल, वेरी इंटेलिजेंट। दस्तूर स्कूल पूना का एक बहुत रिनाउंड इंस्टीट्यूट है, और मेरी मेट बहुत एम्बिशियस मदर है। घर घर में रोटी बनाकर वो अपने बच्चों को दस्तूर स्कूल भेजती है, पर घर के एटमॉस्फेयर को नहीं बदल पाई बेचारी, इसलिए अंग्रेजी बोलना, कॉन्फिडेंटली आंसर करना उसकी डॉटर को नहीं जम पाया। उसको मेरे बारे में सब पता है। उसने बोला, मैडम आप मेरी डॉटर का इंटरव्यू है, और एक यहाँ लीला पूना वाला इंस्टीट्यूट है जो स्कॉलरशिप भी देता है बिलो पॉवर्टी लाइन वाले बच्चों को, ताज ब्लू डायमंड 5 स्टार होटल है पूना का, वहां इंटरव्यू था उसका, तो आप उसको प्रिपेयर करा दीजिए, और 1 हफ्ते का ही समय। वो बच्ची रोज मेरे पास आती थी बहनों। सबसे पहले तो मैंने उसको कि तुम 5 स्टार होटल जाओगी, वहां की चकाचौंध से घबराना नहीं, वो सिर्फ समझो दिखावा है, क्षणिक है, वो तुम्हारे किसी काम नहीं आने वाला। इस सिचुएशन में क्या तुमको काम आएगा? तुम्हारा कॉन्फिडेंस। और मैंने उसको दरवाजा खोल के इंटरव्यू रूम में आना, मास्क नीचे करने की इजाजत मांगना, और कुछ क्वेश्चंस, जो कि मैं खुद अपने स्कूल के पैनल में कई बार बैठी हूँ इंटरव्यू लेने के, तो कुछ क्वेश्चंस फिक्स होते हैं, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बोला, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, व्हाई यू थिंक यू विल गेट दिस स्कॉलरशिप। इस किस्म के प्रश्न उसको तैयार कराए अंग्रेजी में, उसके लेवल की अंग्रेजी में, और 1 हफ्ता रोज इसकी ड्रिल कराई। और आपको जान के हैरानी होगी, हैरानी नहीं हर्ष होगा कि आज 60-70,000 की स्कॉलरशिप की वो हकदार हो गई। कितनी बड़ी अचीवमेंट है उस बच्ची के लिए, और कितनी बड़ी सौगात दी भगवान ने उसके पेरेंट्स को कि उसकी बच्ची ने एक तो नंबर लाए, नंबर लाकर 80-90% तो आज अमूमन हर कोई ले आता है, उसमें कोई खास बात नहीं है। खास बात है हम स्पीकिंग स्किल्स के बारे में कभी क्यों नहीं सोचते। हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, हमें लगता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट यानी सिर्फ स्टाइलिश कपड़े पहन के, ब्रांडेड कपड़े पहन के पर्सनालिटी डेवलप हो गई। बिल्कुल नहीं। हमें ऋतिक रोशन की बात याद रखनी है, टंग ट्विस्टर्स को आप अपने बच्चों के साथ दोहराइए। टंग ट्विस्टर्स क्या है? मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। अगर किसी बहन को लगता है कि हम स्पीकिंग स्किल्स में पीछे हैं, आप उसको दोहराइए। मैं अंग्रेजी के कुछ टंग ट्विस्टर्स बता रही हूँ जो बहुत बड़े बेनिफिशियरीज हैं स्पीकिंग स्किल्स के लिए। हमारी जीभ, हमारी जो अंदर के दांतों की जो रख रखाव है, आप सबके हस्बैंड डेंटल कोर्स से संबंधित शायद होंगे, आपके हस्बैंड ज्यादा बेहतर बता पाएंगे कि मुंह से आवाज कैसे निर्माण होती है। और यहाँ हम कहते हैं ना, नाभि से आवाज, एक वोकलिस्ट नाभि से आवाज निर्माण करता है और मुंह के जरिए वो बाहर आता है, पर शब्द हमारे यहीं से तैयार होते हैं। तो शब्दों की ताकत ऐसी कविता में है जो सुनने में समान है, होमोफोन्स, लेकिन अर्थ बिल्कुल अलग है। जैसे एक अंग्रेजी का टंग ट्विस्टर है जो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को देती हूँ वॉइस कल्चर के स्पीकिंग स्किल्स के लिए। ये टूथब्रश, टूथपेस्ट का काम करता है, याद रखिएगा। She sells seashells on the seashore. Shells she sells are seashells, I'm sure. Speed बढ़ाइए। She sells seashells on the seashore. Shells she sells are seashells, I'm sure. अब manners और gestures थोड़ा ऐड करके उसको अट्रैक्टिव करिए। She sells seashells on the seashore. Shells she sells are seashells, I'm sure.
स्पीड बढ़ाइए, लपसी शब्दों की ना हो, इसका ध्यान रखिए। दूसरा टंग ट्विस्टर, I thought a thought, but the thought I thought wasn't the thought I thought. I thought a thought, but the thought I thought wasn't the thought I thought. I thought a thought, but the thought I thought wasn't a thought I thought. एक हिंदी का टंग ट्विस्टर देती हूँ, समय कम है और बात करने के लिए बहुत से मुद्दे हैं। नारी बिच सारी है कि सारी बिच नारी है, नारी ही की सारी है कि सारी ही के नारी है, नारी बिच सारी है कि सारी बिच नारी है, नारी ही की सारी है कि सारी ही के नारी है, नारी बिच सारी है कि सारी बिच नारी है, नारी ही की सारी है कि सारी ही के नारी है। एक लास्ट टंग ट्विस्टर देती हूँ जो मैं चाहती हूँ आप लोग रिपीट करिए। चाचा ने चाची को चांदनी चौक के चौराहे पे चांदी के चमचे से चटपटी चटनी चटाई। चाचा ने चाची को चांदनी चौक के चौराहे पे चांदी के चमचे से चटपटी चटनी चटाई। चाचा ने चाची को चांदनी चौक के चौराहे पे चांदी के चमचे से चटपटी चटनी चटाई। कम ऑन लेडीज, हु विल डू इट? ये तो पिक्चर का था। कभी चाचा ने चाची को चलिए बोलिए, आज चलिए मेरे पीछे बोलिए। चाचा ने चाची को बोलिए, चांदी चौक के चौराहे पे चांदी के चम्मच से चट्टी चटाई। चाचा ने चाची को कर दीजिए, बोलिए फिर से बोलिए। चाचा ने चाची को चांदी चौक के चौराहे पे चांदी के चम्मच से चटपटी चटनी चटाई। चाचा ने चाची को आपका सुंदर मुखड़ा भी देख सकती हूँ? यस मैम। चलो चलो बोलिए बोलिए, वेरी गुड वेरी गुड। चाचा ने चाची को चांदी के चौराहे में चांदी के चम्मच से चटपटी चटनी चटाई। चाचा ने चाची को चांदी चौक के चौराहे में चांदी के चम्मच में चटपटी चटनी चटाई। What's your good name? नैना जसरोटिया। वेरी गुड, एक्सीलेंट। देखिए, जब आप टंग ट्विस्टर करते हैं, आपको टंग को ट्विस्ट नहीं करना है। ये फ्रेज दिया गया है टंग ट्विस्टर, एक्चुअली ये सब होमोफोन्स हैं, सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स बट हैविंग डिफरेंट मीनिंग्स। ठीक है, और ये इतना आसान नहीं है जितना लगता है। आप अपने बच्चों के साथ खेल खेल में ये बातें सिखाइए उनको, और देखिए उनकी जिह्वा क्या उम्दा शब्दों का उच्चारण करने लगेगी। प्रोनाउंसिएशन जिसे कहते हैं, एंड आर्टिकुलेशन। हमें स्पीकिंग स्किल्स, जैसे अब दूसरा मुद्दा हम लेते हैं। हमने आपको एक वाक्य दिया, मैंने एक किताब खरीदी। आप इससे कितने अर्थ निकाल सकती हैं बताइए? मैंने एक किताब खरीदी। आप इस वाक्य में हर शब्द पे स्ट्रेस बदलते जाइए, अर्थ अलग होता जाएगा। मैंने एक किताब खरीदी यानी मैंने खरीदी, तुमने नहीं। मैंने एक किताब खरीदी, 2 3 4 5 नहीं। मैंने एक किताब खरीदी, कॉमिक नहीं, एक कोई बुक खरीदी। मैंने एक किताब खरीदी, बेची नहीं। शब्दों की ताकत देखी आपने? आप स्ट्रेस हटाते जाइए शब्दों का उच्चारण। लिखते समय हमने वैसे ही लिखा, मैंने एक किताब खरीदी, पर 4 शब्दों से 4 मीनिंग निकले। ये है ताकत स्पीकिंग स्किल्स की। तो बहनों, स्पीकिंग स्किल्स को कभी लाइटली मत लीजिए। वॉइस कल्चर में हम बहुत सी एक्टिविटीज कराते हैं। कभी अगर आप लोगों को लगता है कि मैं आपको सिखाऊं, और अगर आपको लगता है कि आपके बच्चों तक ये बात पहुंचे, तो बताइए, इसका पूरा कोर्स है। I love to share all that with you people, with activities. लेकिन स्पीकिंग स्किल्स को कभी लाइटली लाइफ में मत लीजिएगा। हमारी पर्सनालिटी डेवलप होती है, हम में कॉन्फिडेंस आता है, आत्मविश्वास आता है अनजान लोगों के साथ बातचीत करने का। कई लोग होते हैं जिनके हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं, पोडियम पे जाना है, अननोन लोगों के सामने अपनी बात रखनी है, किसी में पार्टिसिपेट करना है, डांस करना है, म्यूजिक, किसी भी चीज में स्टेज पे जाने से लोग घबराते हैं। स्टेज फियर, फोबिया होता है। घर में अनजान लोग आते हैं तो हमें लगता है कि पता नहीं
हम उनसे बात कर पाएंगे। इंटेलिजेंट आज हर कोई है, साथ में हमारे कम्युनिकेशनल स्किल्स, संवाद संचार के जो तरीके हैं, उनको अगर बखूबी निभाना है तो उसमें स्पीकिंग स्किल्स बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। और भगवान ने जो वाणी दी है उसका हम सही इस्तेमाल तभी कर पाएंगे जब हम इस कौशल को सीरियसली लें। कबीरदास जी बोल गए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल हो। आजकल मुझे जितने ये प्राइवेट चैनल्स हैं, उनके एंकर्स, उनके संवाददाता, उनके कॉम्पियर्स, उनके न्यूज रीडर से व्यक्तिगत तौर पे पर्सनल कोई रंजिश नहीं है बहनों, पर उनका जो प्रेजेंट करने का तरीका है उसको सेंसेशनलाइज कर देना, तहलका बना देना, छोटी सी बात का राई का पहाड़ बना देना। और उसी की जगह अगर आप मुझसे पूछेंगे कि स्पीकिंग स्किल्स में कौन रोल मॉडल है आपका, मैं बोलूंगी बीबीसी न्यूज सुनिए, डीडी न्यूज सुनिए। पुराने जितने कहते हैं ना, पुलाव पुलाव ही होता है, खिचड़ी खिचड़ी ही होती है, दाना दाना खनकता है पुलाव में। तो अगर न्यूज रीडिंग करनी है, हमें कंपेयरिंग करनी है, सूत्र संचालन करना है, जो अभी आप कर रही हैं मैडम, और बहुत अच्छा कर रही हैं, तो उसके लिए हमें स्पीकिंग स्किल्स, आज अगर कोई भी आर्टिस्ट है, संगमित्रा तो जानती है क्योंकि वो खुद इतनी बढ़िया उम्दा डांसर है, आज एक डांसर, एक वोकलिस्ट, एक इंस्ट्रूमेंटलिस्ट को भी स्पीकिंग स्किल्स आनी जरूरी है कि हम क्या पेश करने जा रहे हैं, ऑडियंस को हम पहले बताते हैं। आप कभी भी कोई डांस का प्रोग्राम देखिए, क्लासिकल की बात जब मैं कर रही हूँ, वो आर्टिस्ट अपने पेश किए जाने वाले कार्यक्रम के बारे में इन शॉर्ट जरूर बोलता है। बोलना आया, जरूरी है बोलना आना, पर बोलना कम शब्दों में, याद रखिएगा वाजपेयी जी की बात, कम शब्दों में बड़ी बात, ढंग से कैसे पेश करना, उसको ऑडियंस तक कैसे पहुंचाना, ये स्पीकिंग स्किल्स आपको सिखाता है। और इसके लिए न्यूज सुनिए, बीबीसी न्यूज सुनिए, डीडी न्यूज सुनिए, प्रांतीय भाषाएं सुनिए, लेकिन डीडी की प्रांतीय भाषाएं, क्योंकि वो सबसे नपा तुला सही, बेफिजूल का तमाशेबाजी नहीं होती। मुझे प्राइवेट चैनल्स मैं भी बहुत सुनती हूँ, मैं नाम नहीं ले सकती अभी, लेकिन प्राइवेट चैनल्स मैं भी बहुत सुनती हूँ, लेकिन उनका जो सेंसेशनलाइज कर देने का तरीका है वो मुझे भाता नहीं है। वो खबर से खबर तैयार करते हैं, और जबकि बीबीसी न्यूज देखिए, आप सीएनबीसी देखिए, बिल्कुल नपा तुला बोलते हैं। आप आकाशवाणी ने मुझे बहुत बहुत कुछ सिखाया है, कैसे शुद्ध भाषा बोलना। हिंदी बोल रहे हैं, शुद्ध हिंदी बोलिए। हम बोलेंगे ही नहीं तो बच्चों को आएगी कहाँ से? फिर हम बोलेंगे कि बच्चे आजकल तो हिंग्लिश बोलते हैं, न हिंदी न इंग्लिश, उन दोनों के बीच की भाषा हिंग्लिश बोलते हैं, क्योंकि घर में हम वैसी भाषा बोल रहे हैं। प्रांतीय भाषाएं बोलना बच्चों को जरूर सिखाइए, और ढंग से सिखाइए। और उसके लिए भाषा के जो 4 गुण है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, वो बात की बात है जो मैं अब हर चीज यहाँ कवर करना मुश्किल है, लेकिन लिसनिंग जो मैं आपको कह रही हूँ, लिसन टू द न्यूज एंड द प्रोग्राम्स ऑन आकाशवाणी as well as BBC as well as DD Bharati, such beautiful programs they present. Then speaking, listening के बाद आता है speaking। कभी हिचकिचाइए नहीं, भगवान ने हमें वो ताकत दी है। यही अंतर है जानवरों में और हम इंसानों में। जानवर के पास भी भाषा की ताकत है, पर शब्दों की ताकत नहीं है। शब्द हमने निर्माण किए हैं, स्वर और व्यंजन हमारी निर्मिति है। उसके बहाने हम बड़ी से बड़ी बात छोटे से छोटे दोहे में कह जाते हैं। इतने सा 2 लाइन का दोहा और अथाह समुद्र है उसके अर्थ में, हम कह जाते हैं क्योंकि हमने निर्माण किया। तो लिसन किया, फिर हमने स्पीकिंग करी, फिर रीडिंग राइटिंग आती है। तो स्पीकिंग को भी दूसरे पायदान पे रखा गया है भाषा के, और यही स्पीकिंग हमें हमारे जीवन के हर मुकाम पे काम आएगी। अपने बच्चों को अच्छी स्पीकिंग स्किल्स सिखाइए, उनको टंग ट्विस्टर्स सिखाइए,
उनको अच्छी भाषा पढ़ना और बोलना सिखाइए। उनको हर शब्द के बीच में एक मर्यादा का पालन करके लपसी न बनाएं। हम कैसे अपनी बात जाहिर कर सकें? उर्दू बोलनी है तो अच्छी उर्दू पढ़ें। हिंदी की ताकत एक अलग ताकत है। हम सब हिंदुस्तानी हैं, इसलिए हिंदी हमारे यहाँ से निकलती है। अंग्रेजी हम पे थोपी गई और अब हमने उसको अपना लिया, क्योंकि वो यूनिवर्सल लैंग्वेज है। इसीलिए मैंने शुरुआत में आपको बोला था वेबिनार के, लैंग्वेज नो बार। हर भाषा समान है, हर भाषा का सम्मान करो। और स्पीकिंग स्किल्स के लिए प्रांतीय भाषाएं घर में जरूर बोलिए, अपने बच्चों को जरूर सिखाइए। उनकी पर्सनालिटी उतनी डेवलप होगी। क्या पता उनको कौन सी भाषा लाइफ में कहाँ काम आए। हम आजकल फॉरेन लैंग्वेज सीखते हैं, तो अपनी प्रांतीय भाषाएं बोलने से क्यों चूकें? और उसके लिए लाउड रीडिंग, स्पीकिंग स्किल्स में सबसे बड़ा, मिसेस रॉय इज एन इंग्लिश टीचर, आई हैव बीन अ लैंग्वेज टीचर। हम अपने स्टूडेंट्स को ओरल्स का बहुत इंपॉर्टेंस है आज सीबीएसई में। इसके लिए लाउड रीडिंग बहुत जरूरी है। आपका स्पीकिंग स्किल्स परिमार्जित होगा। और एंड में मैं ये बोलना चाहूंगी, आप एयर होस्टेस बनना चाहती हैं, आपकी बच्चियां एयर होस्टेस बनना चाहती हैं, आप एक फैशन इंडस्ट्री में काम करना चाहती हैं, आप अपना ब्यूटी पार्लर चलाना चाहती हैं, अरे आप एक बुटीक खोलना चाहती हैं, अपनी स्टिचिंग की दुकान खोलना चाहती हैं, आपको अच्छा मधुर बोलना आना चाहिए, वरना आप कस्टमर्स को पकड़ के नहीं रख सकेंगे। मार्केटिंग स्किल्स, लोग बाहर जाके कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आजकल मार्केटिंग स्किल्स सिखाई जाती हैं और हम जैसों को बुलाया जाता है। मार्केटिंग स्किल्स क्या हैं? कस्टमर्स को थामे रखना प्यार मोहब्बत से। कबीरदास जी की बात, मन का आपा खोए औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। ऐसी भाषा बोलिए कि हमें तो आनंद मिले ही, औरों को भी आनंद मिले आपकी बात से। आप कोई भी बिजनेस शुरू करिए, अगर आप प्यारा बोलेंगे नहीं, कोई आपके पास नहीं आएगा। दोस्ती, फ्रेंड्स, वी आर, मैन इज अ सोशल एनिमल। हम अगर अच्छी भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे दोस्तों के साथ, आपको लगता है कोई आप आगे बढ़कर आपका हाथ थामेगा? समय हमेशा समान नहीं रहता बहनों। कब किसकी जरूरत पड़ेगी? पड़ोसियों के साथ आपके संबंध, आपके अधिकारियों के साथ, अधिकारियों की पत्नियों के साथ आपके संबंध, नाते रिश्तेदारों के साथ आपके संबंध, आपके अपने बच्चों के साथ आपके इंटर एंड इंट्रापर्सनल रिलेशनशिप्स में स्पीकिंग स्किल्स बहुत काम आता है। और इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि क्या बोल रहे हैं हम, कैसे बोल रहे हैं हम, कब, कैसे, कहाँ, किधर, ये जितने डब्लूज हैं इन पे हम जरूर गौर करें। और मुझे पूरा यकीन है कि स्पीकिंग स्किल्स में आप सब भी महारत हासिल कर पाएंगी। और अगर मेरी कोई बात आप तक पहुंची है तो आप जाहिर करिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आप कुछ पूछना चाहती हैं तो जरूर पूछिए। Come on, ladies. आप लोग, आप किसी, कोई भी मैम से कुछ सवाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कीजिए, मैम से सवाल कीजिए। देखिए, हिचकिए नहीं, वरना मुझे लगेगा कि मैंने इतना आपको बोलने के लिए उत्साहित किया तो वो किसी काम नहीं आया। कम से कम एक दो लेडीज तो बोलिए। ओके ओके। मंजू मैम, बस एक ही है दैट इस बार दो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट आई कैन मेक अ स्मूथ एमसी whatever event I'm conducting. ये है कि I'll have to say few lines of Urdu which I'm not comfortable because being a South Indian speaking Hindi itself is a big problem for me. Yes, but इस बार मुझे उर्दू बोलना पड़ेगा, तो वो जो few pronunciations are there of Urdu. Yes,
उर्दू में उसको even if I हाँ, go wrong on the stage, how do I make myself look, you know, better? मैं इसके लिए आपको एक छोटा सा ट्रिक देती हूँ। आप अपनी स्क्रिप्ट तैयार करिए, ठीक है? और आर यू गोइंग टू रीड द स्क्रिप्ट और यू विल लर्न द लाइन्स एंड स्पीक? No, I'll be reading the script. यू विल बी रीडिंग द स्क्रिप्ट। सो आपको तो फिर टेंशन नहीं है क्योंकि प्रीफिक्स सफिक्स आपके पास रेडी है स्क्रिप्ट के तौर पे, और आप सिर्फ उर्दू की जो 2 लाइनें हैं शेर पढ़ने वाली हैं आप कोई, हाँ जी, आप उसको बाथरूम के या ड्रेसिंग टेबल, बाथरूम में मिरर है, ड्रेसिंग टेबल के सामने आप 10 बार बोलिए उसको। पहले तो वो लाइन पूरी रट लीजिए और उसके बाद अपने को मिरर में देखकर बोलिए, खुद रिकॉर्ड कीजिए और खुद को देखिए। आई एम वेरी श्योर ये ट्रिक बहुत कामगार आपको साबित होगी। definitely I'll do that. Because अभी टाइम है मेरे पास और तो घर के लोगों को जरा परेशान कीजिए कि तुम मेरा सुनो, प्लीज रिकॉर्ड मी। या तो फिर आप सेल्फी मोड पे डाल के खुद आप उसको रिकॉर्ड कीजिए वीडियो को, और अपनी गलतियां हम बहुत बखूबी पहचान लेते हैं, लेकिन दूसरा इंसान और अच्छे से। तो हस्बैंड इज द बेस्ट क्रिटिक, लेट मी टेल यू। हस्बैंड फ्री है ही नहीं। ना, तो आप उसको रिकॉर्ड करिए और अब खुद ही बार बार देखिए, और वो शेर मैं आपको सुझाव दूंगी कि रट लीजिए और उसको अच्छे से बोलिए भाव के साथ। इट विल कम आउट वेरी वेल मैम, डोंट वरी। थैंक यू सो मच मैम। यस मैम। मैम, जब इंटरव्यू से पहले ग्रुप डिस्कशन होता है जी, तो उसमें अगर उसमें बोलने का मौका, मतलब जैसे 4-5 जन रहते हैं, Yes. तो आप कैसे, मतलब उसमें से आप मतलब वो मौका चुराएं और मतलब अपनी बात रख सकें? सवाल पूछा आपने, बहुत सही। देखिए, पहली बात तो ग्रुप डिस्कशन आपको हमेशा आपके ग्रुप डिस्कशन एक्टिविटी के घंटे 2 घंटे पहले टॉपिक दे दिया जाता है, ठीक है? और टॉपिक पे आप जॉट डाउन कर सकते हैं पॉइंट्स कि किस चीज के पर, भ्रष्टाचार दे दिया, पर्यावरण दे दिया, जो भी टॉपिक दिया आपको, जो भी विषय दिया, उसमें आपको, यही मैं आपको बोल रही हूँ ना, ये जो आत्मविश्वास है, अगर आप में आत्मविश्वास है तो पुरजोर आप अपनी बात कहने के लिए आगे बढ़ेंगी ही और बोलेंगी मैं कुछ कहना चाहती हूँ, अब थोड़ा समय मुझको भी दिया जाए दोस्तों, करके बीच में इंटरवीन करिए। क्योंकि सब बच्चे इक्वली इंटेलिजेंट आने वाले हैं, उसमें हमें अपनी बात सामने रखनी है, तो उसके लिए हमें पुरजोर ताकत लगानी पड़ेगी और अपनी बात तभी हम पेश कर पाएंगे। इसके लिए ही स्पीकिंग स्किल्स की जरूरत है मैडम। आत्मविश्वास कि हमने लिख तो लिए पॉइंट्स मोनोसिलेबल में कि हमें क्या बोलना है, बताओगे क्या? मैं सिलेबल, लेकिन उसको पुरजोर की मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ करके बीच में आपको कहते ना घुसना ही पड़ेगा। यू हैव टू मेक योर वे इन द ग्रुप। क्या मैम वो बॉडी लैंग्वेज सही रहेगा, मतलब उसमें बीच में इंटरप्ट करना? मैडम देखिए, आत्मविश्वास से ही बॉडी लैंग्वेज आता है कि आप 4-5 लोग ऐसे राउंड टेबल, और मालूम है सारे कैमरेज लगे होते हैं और कैमरे के माध्यम से जो पैनल पे लोग हैं वो आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगर आप दबे हुए ऐसे बैठे हुए हैं कुंठित कॉम्प्लेक्स को लेके, तो वो भी नोटिस होगा। छोटी छोटी चीजें, आपकी बॉडी लैंग्वेज पूरी, क्योंकि कैमरे लगे हुए हैं, आपको नहीं पता है कि कितने लोग आपको देख रहे हैं और सब रिकॉर्ड हो रहा है। आईएएस इंटरव्यू में कैसे आजकल तो आप देखिए सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं इंटरव्यू के लिए, कैसे अंदर कमरे के अंदर घुसना कि घुसते ही आप इम्प्रेस हो जाएं लोग आपसे। और ये ग्रुप डिस्कशन की आपने बात की, उसके लिए बॉडी लैंग्वेज की पहले देखिए लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, लेकिन एट द सेम टाइम अपनी बात भी कि दोस्तों मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ करके बीच में घुसना ही। और थोड़ा सा जो हम लोग डिबेट्स में सिखाते हैं पोडियम मैनर्स, और कैसे अपने हाथ, सिर्फ हमारा इतना दिखने वाला है बस, उसमें अपने हाथों का इस्तेमाल, अपनी गर्दन, अपना सिर, इसका इस्तेमाल करके कि अब मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ, मेरी भी बात सुनिए, या मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सो एंड सो, सपोज सामने बैठी है सुमिता, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, ऐसा कह के अपनी बात कहनी। ये सब ट्रिक्स होते हैं ग्रुप डिस्कशन के, जो हम लोग सिखाते हैं कि ग्रुप डिस्कशन में पहुंचने के बाद आप किससे सहमत हैं,
कुछ लोगों से आप सहमत रहेंगे, कुछ लोगों से आप असहमत रहेंगे, और इसी का बहाना लेकर हम अपनी बात आगे बढ़ाते हैं। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। मुझे एक वेलकम पूछना था। जी। अगर हम इंटरव्यू के लिए गए हैं और हाँ। कॉन्फिडेंस भी है, हम उनके हाँ। आंसर्स भी दे रहे हैं, पर जी। सडनली क्या हो जाता है कि वो ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि हमें आंसर पता नहीं होता है, हम घबरा जी। जाते हैं। जी। तो या कुछ अलग सा आंसर देना भी चाहते हैं, तो वो जो घबराहट है, तो वो हम कैसे छिपा सकते हैं? यानी कि थोड़ा-सा हाँ, हाँ, देखिए, पहली बात तो पूछे हुए सवाल का विद इन अ सेकेंड आंसर कभी मत दीजिए। दूसरा, सवाल पूछा, टेक अ डीप ब्रेथ, सोचिए क्या पूछा है। मैं बता रही हूं, लोग वाटर साइकिल की स्पेलिंग रॉन्ग लिख देते हैं नर्वसनेस में ब्लैक बोर्ड पे। हम लोग बोलते हैं मैडम आपने डे नर्वसनेस में। ये बहुतों का होता है, सबका होता है, मेरा भी एक जमाने में हुआ। जब आत्मविश्वास बढ़ता गया, तो जैसे मैंने अभी आपको डेमो करके दिखाया, मैं आज ये डे है, आज ये है, ऐसा है, आज मंडे है, आज ये डेट है, ये ईयर है, ये एक रिमाइंडर, हेडलाइंस ऑफ दैट डे सुन के पढ़ के। एक बार 8 मार्च को इंटरव्यू था। 8 मार्च को क्या होता है बहनों, कोई बताएगा क्या डेट? वुमेन्स डे। वेरी गुड, वेरी गुड, वुमेन्स डे हम सेलिब्रेट करते हैं। 8 मार्च को इंटरव्यू था, एक बड़ी स्टाइलिश लेडी एंटर करती है, हम लोग बहुत इंप्रेस हुए। और ऑल ऑफ अ सडन, जैसे अभी आपने पूछा कि आउट ऑफ द कोर्स, एक क्योंकि इंटेलिजेंट जो है उसको हम लोग आउट ऑफ द कोर्स चीजें पूछेंगे, आउट ऑफ द बॉक्स जिसको कहते हैं, क्वेश्चन पूछा ही जाता है, क्योंकि हम उम्मीद करते हैं कि ये इसका आंसर अच्छे से दे पाएगी। और हमारी उस समय की एक्स प्रिंसिपल ने पूछा कि मैडम, we have seen your lesson plan and your demo, it's excellent. Can you tell us which day is celebrated today? और वो लेडी ब्लैंक हो गई। तो ये होता है, उस समय कुछ नहीं है, जरूरी नहीं है कि आप 10 पूछे गए सवाल के सही उत्तर दे। 10 में से अगर आपने 70% भी अगर करेक्ट आंसर दिया है, तो आपका सिलेक्शन 100%, आप पैनल पे तो रहेंगी ही सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के। और अगर कोई सवाल का जवाब आपको नहीं आता, तो पोलाइटली मैम सॉरी कह के कि मैं सक्षम नहीं हूं इसका उत्तर अभी देने के लिए, या मुझे इट्स नॉट स्ट्राइकिंग मी। मे बी एक कैंडिडेट बाहर जाके रिक्वेस्ट करके कि मैम एकदम मुझे अभी स्ट्राइक हुआ, कैन आई आंसर दैट क्वेश्चन, तो वो भी अप्रिशिएट हुआ। लेकिन हर जगह वो अप्रिशिएट नहीं होता है, डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ पैनल दैट इज कंडक्टिंग द इंटरव्यू, ये भी होता है। लेकिन जो चीज नहीं आती, जैसे एक बार एक लेडी को पूछ लिया था कि क्रिकेट टीम में कितने, वो उसको स्पोर्ट्स से कोई वास्ता ही नहीं था, वो आर्ट टीचर के इंटरव्यू के लिए आई थी, आर्ट टीचर का पोस्ट वेकेंट थी। उसको पूछ लिया ऐसे ही आउट ऑफ द बॉक्स कि मैम आपने तो लिखा है फुटबॉल, लिखते समय बहुत ध्यान रखिए आपने कौन कौन सी हॉबीज लिखी हैं, और ऐसे ही फन्ने खा नहीं बनना है। उस समय उसने लिख दिया था फुटबॉल, और पूछ लिया था पैनल पे एक हमारे चेयरमैन ने कि फुटबॉल कोर्ट का मेजरमेंट बताइए। उसने यूं ही लिख दिया, कहीं गली कुचे में थोड़ा फुटबॉल कभी खेली होंगी मैडम, पर उसको फुटबॉल कोर्ट का मेजरमेंट नहीं पता था। देखिए पकड़ी गई ना। तो ऐसी चीजें लिखिए ही नहीं, क्योंकि आपको जो फॉर्म दिया जाता है उसमें बहुत सी चीजें, आपकी आधी जन्म कुंडली होती है वो मैडम इंटरव्यू के समय। इसलिए अपने बच्चों को भी ये बातें जरूर आप बताइए कि जो है सच लिखो। और अगर आपने कुछ लिखा है ऐसा जो आपने बहुत कम किया है, तो उसके बारे में नॉलेज गेन करके आइए, बी प्रिपेयर्ड टू आंसर। और अगर नहीं आता है तो सॉरी भी बोलिए, दूसरा सवाल पूछा जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक जगह आपने आंसर नहीं दिया तो आपको डिस्क्वालिफाइड कर दिया या आपको सेलेक्ट ही नहीं किया। जो आपका प्लस पॉइंट है वो जरूर दिखाने की कोशिश कीजिए। आपकी सुंदर हैंड राइटिंग है, आप टीचिंग जॉब के लिए जा रहे हैं, तो ब्लैक बोर्ड वर्क आपका इतना खूबसूरत हो कि वो अपीलिंग हो। आप अपना लेसन प्लान ऐसा बना के लाइए। आप अगर किसी कॉल सेंटर जॉब के लिए जा रहे हैं, तो आपको कुछ बोलने के लिए दिया जाता है कॉल सेंटर जॉब्स के लिए, वो इतना अच्छा प्रिपेयर करके आइए कि बाकी के आपके फ्लॉज जो हैं वो कवर अप हो जाए। देखिए बहनों, मैं
एंड में यही बोलना चाहूंगी, कॉम्प्लेक्शन, हाइट, फीचर्स, ये हमारे पेरेंट्स के जीन्स हमको पास ऑन होते हैं। ठीक है, हम to some extent we can go to a beauty parlor, we can join a gym, we can bring ourselves in a nice figure, अपना पावर ड्रेसिंग से हम अपने को अट्रैक्टिव एंड अपीलिंग बना लेंगे। लेकिन इसके बावजूद मैं बोलूंगी, स्पीकिंग स्किल्स हमको पेरेंट्स से मिलते जरूर हैं। इसीलिए मैं बोल रही हूँ, जितनी लेडीज यहाँ बैठी हैं, अपने बच्चों में ये क्वालिटी इनकलकेट जरूर कीजिए। मैंने कोशिश की है अपनी बेटियों में, और उनको आज ग्रुप डिस्कशन, मेरी छोटी बेटी को सुबह बोला कि क्रिसमस पार्टी है उनके कॉर्पोरेट कंपनी में बैंगलोर में, और तुम्हें कंडक्ट करनी है, गेम भी कंडक्ट करना है, और 200 लोगों का 200 पीपल वर देयर इन द ऑडियंस, पर वो कर पाई, और मुझे बड़ा फक्र है कि उसने किया। तो बच्चों को सिखाइए ये स्पीकिंग स्किल्स। ये जितनी जो फ्लॉज हैं, अगर आपको लगता है कि मैं इतनी खूबसूरत नहीं हूं, अरे हमारे में जो स्किल्स हैं उनको हम डेवलप कर सकते हैं, और वाणी स्किल्स जो है वो तो डेवलप की ही जा सकती है। थैंक यू मैम। यस। क्या सुनना, क्या सुनाऊं, बताओ। वंदना, ओके, चलो मैं पूना में हूँ, तो वैसे तो मेरी पैदाइश उत्तर भारत की है, लेकिन मैं पूना में हूँ, तो अगर परमिशन है रॉय मैम, तो 2 लाइनें मराठी में सुना देती हूँ। श्री गजानन जय जय गजानन, श्री गजानन जय जय गजानन, लंबोदर पीतांबर जरीचा, लंबोदर पीतांबर जरीचा, शोभे मस्तक मुकुट जरीचा, शोभे मस्तक मुकुट जरीचा, श्री गजानन जय जय गजानन, जय जय गजानन, जय जय गजानन।